Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir Live? Join our offline online batches for CSIR Net Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more. FTER, अच्छा FTER क्या कहती है FTER? हाँ, फंडामेंटल थ्योरम ऑन इक्वल रिलेशन. व्हाट इट सेज? स्टैंडर्ड स्टेटमेंट एज अ लिंग्विस्ट. नाउ स्टेटमेंट ऑफ FTER. डोंट सी, पलटिए, रिकॉल, फिर देख के बोलेंगे. एवरी इक्विवेलेंस रिलेशन प्रोवाइड्स अ पार्टीशन फॉर द सेट, है ना, एंड कन्वर्सली. दिस स्टैंडर्ड स्टेटमेंट. एवरी इक्विवेलेंस रिलेशन प्रोवाइड्स अ पार्टीशन, डिफाइंस अ पार्टीशन ऑफ द सेट एंड कन्वर्सली. और थोड़ा सा एलॉबरेट करके लिखते हैं तो एवरी इक्विवेलेंस रिलेशन ऑफ ऑन अ सेट partitions the set into equivalence classes. Partition the set. Try to differentiate the terms. Every equivalence relation on A, actually it is subset of A cross A. It is not subset of A, it is subset of A cross A. But it provides a partition of A. हम एक एलिमेंट लेते हैं and then we collect all those elements which are related to that element. Isn't it? अगर S A cross A का सबसेट है, that it contains certain ordered pairs. If it is equivalence relation, take any A belongs to A, then class of A means what? Those element of A such that X comma A belongs to S. That is X is related to A, जो इसमें आता है. So in this way we get a subset of A. So with the help of S we partition A like this. And then we have basic results. Then classes are either disjoint or identical. If two elements are related, they will give the same equivalence class and so on. And दूसरा जो last important था कि whenever you have partition A1, A2, AK, suppose they are subset of A such that one union intersection AI intersection AJ is empty set if I is not equal to J, and 2 union I belongs to I equal to 1 to K. फाइनाइट लेके चल रहा हूं तो A. Then this is partition. This family of subsets of A. This is family of subsets of A. This is always subset of power set of A. It contains all the subsets of A. Here we have few subsets. So this family of subsets of A is a partition of A because of these two conditions, and then this gives you an equivalence relation. Conversely बोल रहा हूं मैं. This gives you an equivalence relation. How it gives you equivalence relation? With the help of A1, A2, AK, we define a subset of A cross A. See, A cross A contains all possible pair of A. So A1 cross A1, it is subset of A cross A. A2 cross A2, it is subset of A cross A, and so on. AK cross AK is subset of A cross A. So this is say S1, S2 and SK. So S1, S2, SK are subset of A cross A. So union SI equal to say S, again it is subset of A cross A. So this is a relation on A, because every subset of A cross A is a relation. So this is a relation on A. But this is not merely a relation, it is equivalence relation. How? For all A belongs to A comma A must be in S, because it is partition. A का हर एलिमेंट किसी न किसी में तो जरूर होगा. So AI cross AI या A2 cross A2 किसी में भी वो A comma A तो आएगा ही आएगा. So for all A comma A, it is member of S. Reflexive. If A comma B is in S, B comma A has to be in S. If A comma B belongs to S, implies A comma B belong to some of SI. But what is SI? AI cross AI. So A comma B belongs to SI. So B comma A, because AI comma AI तो सारे रखेगा. A comma B belongs to this. A B belongs to SI means what? A comma B belongs to AI. तभी तो आ रहा है. And then A comma B and B comma A both are member of AI cross. Symmetry and similarly transitivity.
So this is the method how we construct relation with the help of partition. फर्स्ट समझ मेरा दोनों में, सबसेट्स दिए हो तो रिलेशन बनाना ऐसे बनेगा, रिलेशन दिया हो तो सबसेट बनाना कैसे बनते हैं वो, दैट वी डिफाइन विद द हेल्प ऑफ क्लासेस. अच्छा, फिर ये जो क्लासेस है ना, ये सबसेट्स हैं, दे देमसेल्फ बिकम इक्वल क्लासेस. व्हेन यू हैव अ पार्टीशन ऑफ अ सेट ए, पार्टीशन इनटू सबसेट A1 A2 AK, ये जो A1 A2 AK है ना, यही इक्वल क्लास बन जाते हैं. यहां देख लीजिए ना, एक क्लास सारे अपने आप आ जाएंगे, उसमें होंगे. तो दे देमसेल्फ बिकम इक्वल क्लासेस. जैसे आपके पास मान लीजिए A है, A B C D एंड दीज आर टू सबसेट A1 एंड A2. हो गया पार्टीशन. सो दीज आर इक्वल क्लासेस. When you define relation by this partition, after the partitioning, the relation so obtained is like this. And now, converse, once we have relation, these are the equivalence classes. Which are rated to A? Only A, and they themselves rated. Because it will, S will contain B comma B, C comma C, D comma D, B C C B, C D D C, B D D B. सारे आएंगे. They all are mutually rated. Take B, class of B will contain B, C, D, and class of A will contain only A. So this is what concept of equivalence relation and hence partitioning. Remember the relation which we discussed. Sum is even over natural number. है ना? Sum is even. Was it equivalence? The relation of over natural numbers A comma B belongs to N. A or B such that A plus B is even. We have seen this was equivalence relation. So now let us collect relation element which are rated to 1. Then X belongs to N such that X is rated to 1. That means X plus 1 is even. That means X is odd. So it will contain 1, 3, 5, 7 and so on. 2 is not here. So we have class of 2. 2, 4, 6 by the same relation. This very particular relation has partitioned the natural number into two classes, one odd together, one even together. It has partition. So this is the application of equivalence relation. The only requirement is partitioning of the set, and only task of any equivalence relation is to partition. जब भी आपके पास equivalence relation आएगा, उसके बाद तो hence it partition. It is a net. Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. Natural line which you have to impose. जब भी कहेगा ना, let this is a relation. So you first verify reflexive, symmetric, transitive. The moment you verify, hence it partitions. Now your focus should be what are the subsets so obtained by this partition. What are the equivalence classes so obtained by this partition. यही आपका ध्यान देना चाहिए. Throughout algebra, the moment you impose equivalence relation, next task, what is the partition? After getting partition, that information you should require is one, number of subsets so obtained and number of element in each subset. Never underestimate a theorem which counts something. है ना? How many subsets so obtained? Number of, जैसे इसमें क्या हुआ, इसमें 2. There are 2. ठीक है, एक रिलेशन दिखाता हूं आपको, आप बताइएगा इक्वलेंस है कि नहीं है. खतरनाक सा, गंदा सा. ठीक है, आपको काम करना पड़े. ताकि देखिए, मैंने सेट S लिया, What is this? Ordered pair, but in column form. Transpose ले लिया. This symbol is not new for you. ठीक है, थोड़ा टास्क डिफिकल्ट करते हैं. जैसा कि हम बदनाम भी है कि टफ पढ़ाते हैं, डिफिकल्ट पढ़ाते हैं. भगवान जाने कैसे कहते हो. ठीक है. हाई फाई. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाई फाई? एमएससी बच्चे बोलते हैं ये हाई फाई. 7 साल मैथ्स पढ़ने के बाद वाईफाई बोलो तो भी समझ में आता है. हाँ, और क्लियरली बोलना वाईफाई नहीं, कुछ और मीनिंग नहीं निकलना चाहिए इसका. ए कॉमा बी ट्रांसपोज सेट है. इनफाइनाइट एलिमेंट, इट इज नथिंग बट R2 ओनली, बट रिटन इन कॉलम फॉर्म.
अब देखना, x, y belongs to S, then x is a to y if there exists a ij 2 cross 2, a ij belongs to R, and a determinant A is non-zero, such that a x equal to y. समझ में आया रिलेशन? समझ में आया रिलेशन क्या है? इसमें से दो एलिमेंट उठाइए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, एंड दिस इज 2 क्रॉस 1, ए इज 2 क्रॉस 1, ट्रांसपोज है ना, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल इफ x इक्वल टू, ऐसे लिखेंगे अब तो हम, देन a x1 x2 इक्वल टू y1 y2, ऐसे आएगा नहीं आएगा? a is 2 cross 2, 2 cross 1, 2 cross 1, that we need. So this is equivalence or not? First of all tell me how to prove this is equivalence. हम 12th स्टैंडर्ड का रिलेशन नहीं पढ़ रहे थे, गलतफहमी थे जब तक पढ़ रहे थे, 12th का तो वही था, बट वी नीड टू टेक इट टू द हायर लेवल, isn't it? It is reflexive, reflexive है ना. First of all reflexive. How? For any x belongs to S, we have AS 1001, and what is AX? मिल गया. So this implies X are X, reflexive. Symmetric now. Tell me symmetric. होगा, काम कर जाएगा, क्योंकि मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है. नाउ सिमेट्रिक, इफ x r y implies there exists a determinant a non-zero such that a x equal to y, यही होता है ना बाय डेफिनेशन. बट सिंस a is नॉन सिंगुलर, वी हैव a inverse y equal to x. That means suppose by equal to x, what is b? a inverse, and determinant b has to be non-zero. मिल गया. अगर a मिल रहा है तो फिर b भी मिलेगा, and this implies सिमेट्री आ गई. अब ट्रांसिटिविटी, RST. लेट, ऐसे लिखना हमेशा ही लिखिए ना, लेट x r y and y r z. What we have to show? x r z. For showing x r z, what we have to show? We have to find matrix P such that Px equal to z. यही तो होगा ना बाय डेफिनेशन. ऐसी x a ढूंढना होता है कि x इक्वल टू y हो जाए. कहां गया? लिखा था ना कहीं. अच्छा हाँ, सच दैट a x इक्वल टू y, ऐसे. ये क्या इंप्लाई कर रहा है? देयर एग्जिस्ट a एंड b सच दैट a x इक्वल टू y, b y इक्वल टू z, एंड डिटरमिनेंट a इज नॉन जीरो, डिटरमिनेंट b इज नॉन जीरो. ठीक है. हम क्या करें, जो y है ना, y a इक्वल टू यहां रख दें, तो मेरा b a x इक्वल टू z हो जाएगा. दिस इज b a x इक्वल टू z. b a को नाम दे दो p. दिस इज p x इक्वल टू z. व्हाट इज डिटरमिनेंट p? डिटरमिनेंट b इंटू डिटरमिनेंट a होता है. डिटरमिनेंट डिस्ट्रीब्यूट होता है इस तरह से. दिस इज नॉन जीरो, दिस इज नॉन जीरो. दिस इंप्लाइज व्हाट? x r z. हो गया. सिमेट्रिक भी है, ट्रांसिटिव भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, तीनों है. सो दिस इज एन इक्वल. ये हमने एज एग्जांपल उठाया, बट ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये. इट हैज ग्रेट रोल इन लीनियर अलजेब्रा एंड ग्रुप थ्योरी बोथ. हेंस
equivalence, hence partition. The moment you claim equivalence तो एकदम से निकलना चाहिए hence partition. कुछ तो कसम खाई जाती है ना, कसम खाते हैं ना, जब भी equivalence होगा अगला सेंटेंस बोलेंगे hence it partitions. The moment in algebra you write HA equal to HB ना, इसके बाद तो ये भगवान कसम ऐसी लिखेंगे, ये तो पक्का लिखने ही लिखना है, उसका कोई फायदा हो या ना हो, हैबिट में आना चाहिए. द मोमेंट यू राइट H इक्वल टू HB, HAB इनवर्स बिलोंग्स टू H, ये नेक्स्ट लाइन होनी चाहिए आपकी, और ये लिखा है तो ये नेक्स्ट लाइन होनी चाहिए. सॉल्यूशन 99% केसेस में आगे शिफ्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली. द मोमेंट यू राइट दिस, अपने आप आपके दिमाग में आएगा. डे वन यू हैव लर्न दिस सेंटेंस, वी मस्ट ऑलवेज रिमेंबर द रूल फॉर सिलेक्शन और कलेक्शन ऑफ एनी एलिमेंट. नाउ AB इनवर्स बिलोंग्स टू H, इट मस्ट हैव द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट ऑफ H. ये वो रूल जरूर सेटिस्फाई करेगा जो H में होने के लिए होता है. नहीं, अगर कोई एलिमेंट किसी सेट को बिलोंग करता है तो क्या करना चाहिए, उसको वो रूल तो होल्ड करना चाहिए जिसके चलते बिलोंग कर रहा है वो. तो अगली लाइन क्या होगी, अगर H के बारे में मुझे मालूम है दैट व्हाट इज H, हाउ एलिमेंट्स इन H आर कलेक्टेड, नेक्स्ट लाइन विल बी AB इनवर्स सेटिस्फाई दैट रूल. सपोज H इज कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट विच आर सेल्फ इनवर्स, AB इनवर्स विल बी सेल्फ इनवर्स. H is collection of those which are non-singular matrices, then AB inverse will be non-singular. H is set of diagonal matrix, then AB inverse next line will be what? AB inverse has to be diagonal matrix. Instead next line ये आती है. जैसे आप next line लिखते हो ना तो आपको फिर एक और लॉजिक मिलता है. And in this way we proceed the solution. How proofs are developed? What is the next line if this is the assumption? ये what is the next line if this is implied? ऐसे करते जाओगे, हो सकता है वही पहुंचा जो चाहिए था उसको. Here we have partition. Now, after partitioning, we get equivalence classes. बताइए कितनी क्लास बनेंगी. अब हम क्या करेंगे, इसमें से एलिमेंट उठाएंगे and see what are the element in its class. Suppose what is class of 0 0, which are, अब इसमें क्या करते हैं, which are related to 0. Let's operate every possible 2 cross 2 matrix over this. Suppose this is suppose X. So AX जो भी आएगा वो X का रिश्तेदार होगा नहीं होगा. Whatever result you get Y, this Y has to be related to X. Why don't we operate every possible A over X? This is A is non-zero. This is class or not? सारी ऑपरेट कर दीजिए, जो आएगा वो क्या आएगा, इसी क्लास में आएगा नहीं आएगा, बट कुछ नहीं आएगा, हमेशा क्या आएगा, इसी क्लास में यही होगा. पक्का. है ना. क्या देखिए, आपको अभी बताया था आपने क्लास ऑफ 1 such that x belongs to n such that x plus 1 is even. यही तो आ रहा है ना. तो इसमें कौन आना चाहिए, एक काम करें, सारे, इसका मतलब x को ऑड होगा तब, x इवन होगा तभी आएगा, x इवन होगा तभी आएगा. तो इस क्लास में क्या कीजिए, सारे इवन नंबर 1 ऐड कर दीजिए, अपने आप आ जाएगा नहीं आ जाएगा, इंक्लूडिंग 1. सो सारे इवन आपने ऐड कर दिए तो मेरे सारे आ गए ना. कौन कौन आ गए, 1 3 5 सारे आने शुरू हो गए. ऐसे यहां पर अगर x को y का रिश्तेदार होना है तो एक ऐसा x मिलना चाहिए कि ये बन जाए. एक काम करते हैं, इस x पे ये A1 A2 x A3 x, ये मान लीजिए y1, ये y2, ये y3, ये सारे क्या आ रहे हैं, x के रिश्तेदार आ रहे नहीं आ रहे हैं. x फिक्स किया मैंने एंड आई एम कलेक्टिंग दोस्त विच आर रिलेटेड टू y. तो मैं जैसे जैसे भी इस पर तो y, इसका मतलब क्या हुआ, y1 x y2 x y3 होता रहे होता रहे, जो भी आया क्या होगा वो x का रिश्तेदार ही तो होगा. तो एक काम करते हैं, अगर हमें x r y a x इक्वल टू, ये रूल बनाया था हमने, और रिलेशन कैसा है, इक्विवेलेंस है. अगर x y का रिश्तेदार है तो y भी x का है, चाहे मैं यहां ऑपरेट करूं चाहे यहां ऑपरेट करूं, बात तो वही है. अगर x y का रिश्तेदार है तो y भी तो x का है ना, सिमेट्री प्रूव कर चुके हम लोग. आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं. वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है. अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें. आप घर बैठे बैठे CSIR नेट
IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। तो अगर हमारे पास ये मैट्रिसेस है A1, A2, AK सपोज, तो A1 को X पे ऑपरेट करेंगे तो क्या आएगा? एक रिश्तेदारी आएगा X का, नाम दो Y1। A2 करेंगे तो एंड सो ऑन। ये सब कौन आ रहे हैं? कितने आएंगे? जितनी मैट्रिसेस पॉसिबल है। तो वही यहां पर क्या किया कि मैंने इस X का इस्तेमाल निकाला था, मुझे जितनी पॉसिबल मैट्रिक्स सबको ऑपरेट कर दिया। रिजल्ट क्या आएगा? इसका इस्तेमाल तो आएगा। अगर आप हमेशा ध्यान रखिए, जैसे कभी भी इस सेट के एलिमेंट हैं X1, X2, Xk और एक सेट T दूसरा है A1, A2, AR, और आपको रिश्तेदार निकालने के लिए AIXI इक्वल टू सपोज YI, तो ऐसे कितने YI मिल सकते हैं आपको? जितनी चॉइस इसके लिए होंगी। और ये X फिक्स कर रखा है हमने, ये सारे रिश्तेदार आएंगे नहीं आएंगे? तो कितनी पॉसिबिलिटी है उनके ढूंढने की, है ना? ये बोलते जाइए। अब ये Y1, Y2 डिफरेंट आ रहे हैं नहीं आ रहे पता नहीं, ये इस पे डिपेंड करेगा। जैसे यहां क्या हुआ, यहां भी अलग ले रहा हूं मैं, यहां तो इसका मतलब क्या हुआ? A इज समथिंग दिस, AIG बोलते जाइए आप। A बदलना है मेरे को, बट यहां चांस की बात ये आई कि मैं चाहे जो A ले लूं, ये तो हमेशा 0 है क्योंकि ये 0 पे ऑपरेट हो रहा है। ये क्या है? X मेरा। अब दूसरा दिखाता हूं आपको मैं। अब क्लास ऑफ 1 0 देखो, क्लास ऑफ 1 0, इसमें क्या आएगा? A 1 0 सच दैट A इक्वल टू AIJ 2 क्रॉस 2 और AIJ बिलोंग्स टू R एंड डिटरमिनेंट A इज नॉन जीरो। ये तो है ना। अब इसके ऊपर जितनी भी मैट्रिक्स ऑपरेट करता हूं वो सारे नए रिजल्ट आएंगे। वो क्या होंगे? इस 1 0 के स्टार होंगे नहीं होंगे? पक्का ना? देखिए कौन कौन आता है, अब जरा दिखाइएगा। जरा एक मैट्रिक्स देखिए A, मैं यहां 1 1 करता हूं पहले, तो सुंदर लगेगा, ब्यूटीफुल, आसान रह जाएगा। A 0 0 B एंड A इज नॉन जीरो, B इज नॉन जीरो। एक मैट्रिक्स बनाई मैंने, A B कोई भी ले ली बट नॉन जीरो। इससे डिटरमिनेंट A क्या हो गया? हो गया ये डिटरमिनेंट। करना क्या है? तरह तरह की मैट्रिक्स पे ऑपरेट करते हैं, जितने आपके पास चॉइस होंगी सारे सारे इसके अंदर आएंगे। बट यहां चांस की बात थी कि सभी 0 हो गए थे, बट यहां सभी 0 नहीं होंगे। मैं 1 1 ये फिक्स कर रखा है, मैं A बदलता जाऊंगा। देखिए क्या क्या बदल सकता हूं A। मैंने केस मान लिया डायगोनल मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स ले लिया हमने, आसान है मेरे लिए। अगर A और B नॉन जीरो है, डिटरमिनेंट नॉन जीरो हो गया। अब ऑपरेट करो इसके ऊपर। व्हाट इज A 1 1? ये आएगा। A क्या है मेरा? A 0 0 B। किस पे ऑपरेट कर रहा हूं मैं? 1 1 पे। क्या आएगा? A B। अभी पहले इतने लेते ना, इससे इतने से प्रूफ क्या हुआ? इतने से इससे क्या प्रूफ हुआ कि दिस A कॉमा B दिस बिलोंग्स टू क्लास ऑफ 1 1 और नॉट। एक मिल गई ना हमको, बट कब? जब A और B नॉन जीरो हो, तब। ये सारे इसी क्लास में आ गए। अभी छापो मत, अभी कुछ और देख लो। खूब छापते हो आप लोग, ये लो। एक मैट्रिक्स मैंने A ली, A 0 0 B एंड A इज नॉन जीरो, B इज नॉन जीरो। दिस इंप्लाई डिटरमिनेंट A इज नॉन जीरो। मेरे काम की हो गई मैट्रिक्स ये। एक मैट्रिक्स मैंने B ली, A 0 -1 B, जरा है देखना 1। अगर मैं 1 1 ऑपरेट करूं तो क्या आएगा? वन कर दे इसको। अब इसको करेंगे ना, -1 1 हो गया 0। वेरी गुड।
वही काम चल गया मेरा। a इंटू 1 प्लस 0 a आ गया, माइनस, वंडरफुल। a इज नॉन जीरो, a इज नॉन जीरो, है ना, a इज नॉन जीरो यहां पर। सो मुझे डिटरमिनेंट a नॉन जीरो, डिटरमिनेंट b नॉन जीरो एंड डिटरमिनेंट c नॉन जीरो मिल रहे हैं। ये 3 मैट्रिक्स बनाई मैंने। ये आपको सीखना भी होता है, जैसे एक बार यहां कैसे करना सीखा, एक मैथड बताने की कोशिश करो कि ऐसे हम आगे कर सकते हैं। अब आगे सिचुएशन यही आएगी ना, वी हैव नाउ लर्न हाउ टू कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स टू प्रोड्यूस सम काइंड ऑफ एलिमेंट। अब इससे मैं क्या करना चाह रहा हूं कि अब आपने x लिया किसका एलिमेंट, s का, आपने x लिया कोई s का एलिमेंट। अब x किस टाइप का होगा, अल्फा बीटा। यहां पे 3 केस आए, 4 केस बनेंगे। अल्फा इज 0 0, बीटा इज 0, अल्फा नॉन जीरो, बीटा 0, अल्फा 0, बीटा नॉन जीरो एंड अल्फा नॉन जीरो, बीटा नॉन जीरो। अब ठीक है, 0 0 1 0 0 1 1 1, 4 केस बन गए। ये हो सकता है ना। मैं ये दिखाना चाह रहा हूं ये सारे के सारे इसको छोड़ के, इफ ये केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, दिस फर्स्ट इज केस 1 गिव्स यू x is 0 0 and this x belongs to class of 0 0, एक ही आया। बट केस 2, केस 3 है ना, एंड केस 4, केस 4, दे ऑल A11, B11 एंड C11 सब यही आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे। दिस इज व्हाट, है ना, जो भी हमारा आया है इसमें बस एक ही जगह बी में अल्फा बीटा कर लूं मैं। यहां पे अल्फा 0 0 बीटा 1 1 अल्फा बीटा, ये आ गया नहीं आ गया। ये तीनों नॉन जीरो है ना। दूसरे वाले केस में क्या आ गया, अल्फा 0 0 अल्फा, सारे केस आ गए। ये सब के सब कहां बिलोंग कर गए, इसी 1 1 पे ऑपरेट करने पे सारे आ रहे नहीं आ रहे। हर अल्फा बीटा की मतलब चाहे जो ले लीजिए अल्फा बीटा, हम 1 1 पे ऑपरेट करके ढूंढ पा रहे हैं। मैट्रिक्स मिल रही नहीं मुझे, मिल रही है। जो आप मुझे मान लो आपने मुझे दिया 2,3, ये दिया 2,0, बताओ ये क्लास ऑफ 1 1 में है कि नहीं है, ये पूछा जा रहे हो आप उससे। अगर ये 1 1 क्लास में आना चाहता है तो मुझे एक ऐसी मैट्रिक्स मिलनी चाहिए जिसको इस पे ऑपरेट करो, इस पे 1 1 पे ऑपरेट करो, तो आ जाना चाहिए। मैट्रिक्स क्या मिल गई मेरे को, 2 0 -1 1, इसको ऑपरेट करो 1,1 पे क्या आएगा देखो, और डिटरमिनेंट इसकी क्या आ रही है, नॉन जीरो आ रही, मिल गई मैट्रिक्स। मैंने स्टैंडर्ड बना लिया, ऐसे ऐसे ABC अननोन मुझे मिल गए, रख दो। आपको चाहिए 3 4 0 0, इसको ऑपरेट करो 1 1 पे क्या आएगा। ऑपरेट हमें 1 1 पे करना है, केवल 1 1 पे ही हम किसी ऑपरेट करके हम हमेशा ढूंढ सकते नहीं ढूंढ सकते हैं। सारे इस क्लास में नहीं आ गए, तो कितनी क्लास बनी, एक क्लास बनी किसकी 0 0 ट्रांसपोज की, और एक क्लास बनी मेरी 1 1 ट्रांसपोज की। इसमें आया कौन, अकेला 0 0, और इसमें सारे आ गए। कोई भी एलिमेंट उठाना चाहो, मैं एक ऐसी मैट्रिक्स जरूर ढूंढ सकता हूं कि इस पे ऑपरेट करने में वो आ जाएगा। ये प्रूफ हुआ। और सोचने की कोशिश करो, कॉम्प्लेक्स बना दिया इसको हमने, है साफ सा सूंघ गया सबको। क्या डिफिकल्टी है इसमें, नहीं है तो यार स्ट्रांगली बोलो, खुश होके बोलो, चेहरे पे 12 बजे हुए सबके, क्या इश्यू है बताओ। वो वाले 12 नहीं बजे, ये वाले 12 बजे हैं, उधर घड़ी देख रहे हो आप। समझिए, ट्राई आपको या तो वही छोटे छोटे से क्वेश्चन कराए जाए कि ये है
रिलेशन सीख लिया हमने कि व्हाट इज रिलेशन। अब या तो हैप्पी हो जाओ कि हमें रिलेशन आ गया, ठीक है, हम तो सीख गए भाई। अब Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir Live? Join our offline online batches for CSIR Net Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more. तो कुछ भी पूछ लो, तो है ना, कुछ भी आपको अप्लाई करना आना चाहिए, समझना आना होगा, थोड़ा सा इंटरेस्ट करेगा किसी और टॉपिक से इश्यू आ जाएगा। मैं क्या कह रहा हूं, अगर ये कंफर्म हो गया कि क्लास ऑफ ए जो भी एक्स है, एक्स इक्वल टू इसमें ए एक्स, जहां ए बिलोंग कर रहा है, ए इज डिटरमिनेंट, ए इज नॉन जीरो, है ना, यही तो है ना। अब अगर कोई y क्लास ऑफ x में आना चाहता है तो एक मैट्रिक्स तो ऐसी मिलनी चाहिए कि डिटरमिनेंट b नॉन जीरो हो, एक तो ये चाहिए, और साथ में bx इक्वल टू y आ जाए। मैंने यही बता दिया कि क्लास ऑफ 1,1 में ना पूरा s माइनस 0,0 आ गया, पूरा s माइनस 0,0 आ गया। क्यों? आप मुझे बताओ कौन सा वेक्टर ऐसा है इसमें जो नहीं हो। आप मुझे जो दोगे, कुछ तो दोगे मुझे अल्फा बीटा, ये दोगे ना मुझे, दिखाओ उसमें। अगर दोनों जीरो है तो ठीक है, वो बाहर निकल गया। अब तो बाकी तीन कैसे बचे ना, या तो ये जीरो नहीं है, या ये जीरो नहीं है, या दोनों जीरो नहीं है। आप मुझे दो, मैं भी दिखाता हूं इसके अंदर मैट्रिक्स बना के। आपने मुझे मान लीजिए दे दिया कुछ भी, मान लीजिए 1 2 दे दिया, ठीक है ना, मैट्रिक्स बी बना रहा हूं आपकी 1 0 0 2, लो करो ऑपरेट। ये आ गया नहीं आ गया इसमें? आपने कहा नहीं मेरा 5,0, अभी लो इसको देख के बना रहा हूं मैट्रिक्स में, एक सी बना रहा हूं 5 0 -1 1, करो ऑपरेट। इस जो पीछे बनाई यही थी ना। आपने कहा नहीं 0,6, ठीक है, हम उसके अकॉर्डिंग बना लेंगे, ट्रांसपोज कर दो उसका। ऑपरेट इसी पे कर रहा हूं 1 1 पे। हर एंट्री इस टाइप की इसके अंदर आ रही नहीं इसी क्लास में। सो इफ फॉर एवरी मैट्रिक्स यू कैन फाइंड सच बी दैट bx इक्वल टू y शुड बी इन द क्लास। और मैं ये प्रूव कर पा रहा हूं कि s का हर एलिमेंट इसकी क्लास में आ रहा है। तो हाउ मेनी क्लासेस? ओनली 2 क्लासेस। एक क्लास में 0 0 और बाकी सारे एक क्लास में। टोटल कितनी क्लास हुई? 2। एक क्लास में फाइनाइट एलिमेंट और एक क्लास में इनफाइनाइट एलिमेंट। देयर आर 2 क्लासेस, one consists of finite, one consists of infinite element. Only 2 classes. So number of classes finite, but cardinality of class, one is finite, other is infinite. So I can't say finite or infinite. Need not to be finite, need not to be infinite. दोनों ऑप्शन आगे नहीं आ गए। दिस इज क्वेश्चन इन गेट एग्जाम। ये गेट का क्वेश्चन है, अलजेब्रा में पूछा हुआ था, बट किसी और सेंस में। ये जो सारी कहानी यही थी, आपको यहां तक पहुंचना था बस। दे हैव आस्क्ड नंबर इन इक्वल्स, ये जो आया ना यहां पर, वहां रेफरेंस था ऑर्बिट का, वहां रेफरेंस था ऑर्बिट। इनको वहां वो बोलता है ऑर्बिट। क्लास ऑफ एक्स इज कॉल्ड ऑर्बिट देयर, एंड दे हैव आस्क्ड हाउ मेनी ऑर्बिट्स। द क्वेश्चन वाज हाउ मेनी ऑर्बिट्स, 1 2 3 and infinite. These were the options, 1 2 3 and infinite. So how many orbits? 2. अगर हम किसी भी सेंस से बात करें, अब वो भूल जाते हैं ऑर्बिट। How many classes? 1 2 3 infinite. These are 4 options. They will give you this relation and then ask how many classes. Simple fundamental question of equivalence relations. How many classes? 2. बहुत सारे बच्चों ने दिमाग लगाया था उस समय, मुझे याद है कि उन्होंने कहा कि सर एक क्लास बनेगी 0 0 की और एक क्लास 1 0 की, एक 0 1 की, बिकॉज दे आर इंडिपेंडेंट, सो दे विल स्पैन, बट इसकी क्लास में हमेशा 0 ही आएगा। सो उन्होंने 3, दे हैड आंसर 3 ऑल्सो, हैड आंसर ऑप्शन 3 ऑल्सो, नॉट आंसर ऑप्शन नंबर 3 ऑल्सो, बट आंसर इज 2, बिकॉज एक क्लास में 0 और बाकी सारे चले गए किसकी क्लास में? मैंने बता दिया इसकी क्लास में सबको ही आएगा, हर कोई इसकी क्लास में आ जाएगा। मैं मैट्रिक्स बना के दिखा भी सकता हूं आपको, तभी तो करना है ना। एक ऐसी जैसे आप कह रहे हो ना कि क्लास ऑफ 0 0 में कोई और नहीं आएगा, क्योंकि कोई भी मैट्रिक्स लोगे आप, रिजल्ट क्या आएगा? 0 0, कोई और आ नहीं रहा है। बट यहां पर जो क्लास ऑफ मैं 1 1 कह रहा हूं, इसमें सारे आ रहे हैं, क्योंकि मैट्रिक्स मुझे मिल रही है। आपको जो कोई भी a, b दे दो, मैं इसको देखूंगा, इसी ABC मैट्रिक्स बनाऊंगा। मैं कैसी मैट्रिक्स बनाऊंगा? 3 चॉइस है मेरे पास। आपने मुझे AB दिया होगा ना, एक चॉइस मेरी A 0 0 B, एक चॉइस मेरी A 0 -1 1, और एक चॉइस -1 1 0 A जो भी
A या B, जो भी नॉन जीरो होगा. If B is non zero, तो I'll put it B. If A is non zero, I'll take this. और इस पे जब भी ऑपरेट करोगे ये 1 1 वही आएगा. क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इक्विवेलेंस रिलेशंस के बाद. यस, ये अनकाउंटेबल नहीं होगा पूरा जो सेट हो जाएगा. एस अनकाउंटेबल है. हाँ, आप बताओ डाउट क्यों आया? व्हाट इज एस? R2. हाँ, व्हाट इज एस? R2 ना, बस कॉलम में लिखा है उसको एस इज R2. क्लासेस दो हैं, क्लासेस दो हैं, एक में सिंगलटन जीरो और एक में सारा R2 माइनस 0 0. There are two classes. One is finite singleton and other is uncountable. There are only two classes. In GATE there are 7 such questions in which they have asked equivalence classes with different names. आपको ये पहचानना आ जाए कि ये equivalence class ही पूछ रहा है तो आप कर लोगे ना. तो क्वेश्चन में दो पार्ट होते हैं. एक तो आइडेंटिफाई करना कि करना क्या है, निकालना क्या है इसमें से. तो यही पार्ट हुआ ना. और जो निकालना है वो जैसे मालूम चल जाता है आपको तो कहते हैं अब तो ये तो मुझे पता है कैसे निकालना है. ठीक, जब भी आपको इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है, मान लो क्लास ऑफ एक्स, ढूंढो कैसे ये डिफरेंट बनेंगे. अगर वो कह रहा है किसी एक के ऑपरेट करने से बनते हैं तो फिर ठीक है यही कर लो और ए बदलते जाओ. जितने चॉइसेस हैं सब लगा दीजिए, सारा क्या आएगा इसके रिश्तेदार ही आएंगे अगर एक्स फिक्स है तो. सो व्हाट यू नीड टू कलेक्ट एलिमेंट इन अ क्लास एंड देन काउंट. फर्स्ट यू नीड टू कलेक्ट एलिमेंट इन अ क्लास देन काउंट. Now start writing a very important relation, equalization. Partition we have done, equivalence relation we have done. Now we have to move for equivalence, some special equivalence relations, especially one, congruence modulo M. A very important relation. जैसा गॉस ने कहा था ना कि mass is queen of sciences, है ना, said by गॉस. गॉस ने ये कहा था कि mass जो है ना it's queen of sciences and number theory is queen of mathematics. And in number theory, this very particular relation is queen of number theory. So, science is grandmother of this, है ना, this relation. वो नानी वाला रिलेशन आ गया ना वहां तक तो. This very important relation, congruence modulo relation. Modulo relation on Z, 0 plus minus 1 plus minus 2 and so on. Congruence modulo relation on integers Z. Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now.